My dear students, the video what I am going to present before you is one of the best poems of ISC syllabus. This is poem number 8 and the name of the poem is Dover Beach. Dover Beach has been a challenge for the students of ISC students because most of the people who go through the poem finds their views different and they put their different types of opinions. So far as the poem is concerned, let us come to the point. The poem has been written by Matthew Arnold. Matthew Arnold was one of the greatest poets of Victorian age. That is, Victorian age means the age of Victoria. It begins from 1837 and ends in 1901. This particular poem written by Matthew Arnold is also belongs to the same period, that is Victorian period. And Victorian period is to be described very thoroughly because it has a great significance, it has a great relevance with the theme of the poem, but it will be described later on. First of all, we are coming to the title of the poem. The title of the poem is Dover Beach. So let us discuss about it. What is Dover? Dover is actually the name of the place of England, and beach means seashore. So the poem is written at the seashore of Dover. So it is very simple description. It is just the English Channel. In one side there is England and on the other side there is France. So at that very spot the poem is written. Actually this poem is known as a lyric, but it has some elegiac note also because it is written in shared atmosphere. Somebody calls it a dramatic monologue also because there is only one speaker and there is only one listener. The speaker is the poet himself and the listener is his wife. It is believed that the poem was written at that period when the poet has gone with his wife to celebrate his honeymoon at Dover, and at that time the poem was composed. So this is the theme. Now, so far as the poem is concerned, and to have a better understanding and a thorough knowledge and about this poem, let us go to the background of this poem. As earlier I have mentioned you that poem was written in Victorian period. Victorian period was the period of changes, period of transition from one belief to another belief. Actually before that, before Victorian era, the human being believed that God is almighty, the God has created this universe, the God has each and every role in the shape of human fate. But in 19th century, when so many scientific inventions and discoveries took place, the attitude of the people towards the Bible completely changed. Now the people believed that God has not created this universe because so many scientific inventions proved that. Apart from that, the most important invention what happened during that period, that was regarding the Darwin's theory of evolution. Darwin challenged the biblical view. The Bible believed that the man has been created by God. Human being and all the species have been created by God. But Darwin completely refuted this very idea, and he said that no, it is a natural phenomena of science. By that scientific process, the human beings are evolved. So in these two things, the people were quite confused whether we should believe in God or we should believe in science. So during this struggle in their minds, this poem was written. Actually in this poem, the poet wants to say that the trouble, the misery, or each and every types of wretchedness in the life of a human being is only due to the decline in faith in God. So let us come to the point. Actually this poem has 4 stanzas, and the first stanza is the description or the natural beauty of Dover.
The second stanza describes one of a great Greek philosopher of 5th century, that is Sophocles. Third stanza and fourth stanza has almost the same idea, and that is the condition of human being in the present age. So we have seen here that the poem has been divided into 3 parts. The first part, the description of Dover or the natural beauty. Second one is the comparison of Sophocles, and the third thing, the condition of human being in the present age. The main theme, the central idea, what I have told you about the poem is the decline of faith in God is the main cause of the misery of human being. Now we are coming to each and every line. So let us come to the first stanza. Now the poem begins. Now you go through the line and try to understand each and every word, each and every sentence, what I am going to make it clear. The first line of the poem is, the sea is calm tonight. The sea is calm tonight. It means the scene has taken place at night time, and the sea is just calm, but the tide is full. Sea is calm, but the tide is full, and there is the moonlight. Moon lies fair upon the straits. Actually strait means just a gulf or an inlet, और तुम कह सकते हो जैसे एक छोटा सा धार जो समुद्र से निकल जाता है, उसी जगह पर. तो the moon lies fair upon the strait, it means the moonlight was shining upon the surface of the water. In one side, another side, when you go to the French coast, दूसरी तरफ, इस डोवर के दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो आता है फ्रेंच कोस्ट. फ्रेंच कोस्ट पर जो मून लाइट है वो साइन तो कर रहा है, बट इट डीमली. फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स करता है, मतलब डीमली साइन करता है, एंड फिर गॉन, और फिर चला भी जाता है. तो डीमली साइन भी करता है, लाइट चला जाता है. तो जो फर्स्ट 4 लाइन्स है, इसमें हमने देखा कि जो नेचुरल कंडीशन है, सी इज़ काम, but the tide is there in the sea. There is the moonlight, and the moonlight is falling upon the surface of the water in the straits of Dover. And secondly, at the French coast, we have seen that the dim light of the moon is already seen there, and sometimes it is gone. Apart from that, let us come to the England side once again. So cliffs of mountains stand glimmering and vast. So a large stretches of क्लिप्स आर देयर, यानी पहाड़ की श्रृंखलाएँ वहाँ पर बनी हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है, डोवर तक पहुँची हुई है ये, और उस पर भी जो मून लाइट है वो फॉल करता है. तो ऐसे रोमांटिक कंडीशन में जब सामने समुद्र हो, समुद्र में टाइड्स हो, समुद्र में धाराएं चल रही हो, चांदनी रात हो, और एक यानी पोएट अपने बिलवर्ड के साथ होटल के एक कमरे से विंडो से देख रहा हो, तो इस रोमांटिक कंडीशन में पोएट अपने वाइफ को इनवाइट करता है और कहता है, कम टू द विंडो. सो नाउ वी आर इन द 6th लाइन, कम टू द विंडो. Actually the poet is inviting to her to come and see the natural beauty of the sea. Sweet is the night air. It means she wants to say that there is a very, very pleasant atmosphere of this place. Only from the long line of spray where the sun meets the moon-blenched land. Moon-blenched land. Blenched means bathed. मून-ब्लेंच्ड लैंड का मतलब चांदनी से नहाई हुई धरती. तो चांदनी से नहाई हुई धरती को समुद्र की वेव जब छूने के लिए उसके सीशोर तक आती है, तो सीशोर पर टकराने के बाद एक स्प्रे जैसा, यानी एक ड्रॉप जैसा उस ऊपर की तरफ उठता है. फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब है जस्ट वाटर ड्रॉप्स आर राइजिंग फ्रॉम द सरफेस टू द अपर पार्ट. एंड इस कंडीशन में ये फिर पोएट कहता है, लिसन, अपने वाइफ से कहता है, लिसन, ध्यान से सुनो. यू हियर द ग्रेटिंग रोअर, कहता है ध्यान से सुनो, क्या तुम इस साउंड के बीच में एक और साउंड तुम्हें सुनाई पड़ रही है? वो साउंड कौन सा है? एक्चुअली वो साउंड है पेबल्स की साउंड. जब समुद्र की धाराएं आती है किनारे तक, तो अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंकर पत्थर को भी बहाती हुई लेकर चली आती है, और जब ये धारा से सीशोर से टकराती है तो वेव तो वापस चली जाती है, लेकिन वो कंकर पत्थर उसी सी बीच पर रह जाता है.
अब पोएट कहता है कि वो सी का जो वेव्स है वो आ रहा है, पत्थर के टकराने से एक आवाज़ भी हो रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। इस तरह वेव्स का एक बार आना, वापस जाना, फिर आना, फिर वापस जाना, इस तरह से एक रिदमिक पैटर्न में सी वेव्स का आना और जाना, ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक तरह से कोई म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूसर हो रहा हो। पोएट कहता है वो ट्रिमुलस कैडेंस का मतलब है ट्रेम्बलिंग म्यूजिकल साउंड, यानी एक ऐसा साउंड जिसको सुनकर इंसान के मन में एक तरह से भय या शंका भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इस तरह का जो सोच, इस तरह के साउंड को सुनकर पोएट कुछ और ही सोचने लग जाता है। इतना अचानक एक रोमांटिक मूड जो है वो अचानक सैडनेस की तरफ कन्वर्ट हो जा रहा है। और पोएट अपने फर्स्ट स्टैंजा के आखिरी लाइन में यही कहता है कि द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन दैट पर्टिकुलर साउंड ऑफ पेबल्स द पोएट रियलाइजेज द इटर्नल साउंड ऑफ सैडनेस। तो इस तरह से हमने देखा इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, जिसमें डोवर बीच की ब्यूटीफुलनेस को डिस्क्राइब किया गया है, रात की ब्यूटीफुलनेस को डिस्क्राइब किया गया है पहले के लाइंस में। लेकिन फर्स्ट स्टैंजा का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें पोएट अचानक अपने मूड को चेंज कर लेता है। अचानक अच्छी चीज़ों को सोचते सोचते अचानक जब कोई बुरा चीज़ दिमाग में आ जाए तो वही चीज़ पोएट वहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में दिखाना चाहता है कि इतने सुंदर एटमॉस्फेयर में उस पत्थर के टुकड़े से और उस म्यूजिकल साउंड से अचानक उन्हें इंसान के दुख तकलीफ की याद आ जाती है, और उसी चीज़ को पोएट अब आगे बढ़ाएगा। इस स्टैंजा को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि ये पोएम कुछ ऐसा डीप थॉट वाला होगा, ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल पोएम और नेचर का डिस्क्रिप्शन है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पोएम जैसे जैसे आगे बढ़ता है यानी पोएट के डीप थिंकिंग के बारे में पूरी तरह से पता चलता है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा के पहले ही लाइन में पोएट ने सोफोक्लस को डिस्क्राइब किया है। सोफोक्लस वाज ए ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर ऑफ 5th सेंचुरी BC। एक बार सोफोक्लस भी घूमते घूमते एक समुद्र के किनारे आए और समुद्र का नाम था एजियन सी ग्रीस और एशिया माइनर के बीच में है। वहाँ पर जब वो बैठकर इसी तरह से सी वेव्स को देख रहे थे तो देखते देखते उनके दिमाग में भी अचानक इसी तरह की बात आ गई थी। जो घटना लगभग आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है पोएट, उसी को रेफ़र कर रहा है कि जब वो पोएट वहाँ बैठा था तो उसको भी इसी तरह की बातें दिमाग में आई थी कि ये जो साउंड है वो ह्यूमन मिजरी से उन्होंने भी जोड़ दिया था, यानी वेव्स के साउंड को, और वैसा ही चीज़ ने यहाँ भी मैथ्यू आर्नोल्ड को भी दिखाई दे रहा है। यस, कहता है यहाँ पर ऑफ ह्यूमन मिजरी वी फाइंड ऑल्सो इन दिस साउंड। पोएट को भी कुछ ऐसा ही साउंड सुनाई पड़ रहा है जो सोफोक्लस को लॉन्ग एगो एजियन सी के पास मिला था। और जैसे एजियन सी के उस साउंड को, उस सैड साउंड को सुनकर पोएट ने ह्यूमन मिजरी को डिस्क्राइब किया अपने बहुत सारे ड्रामाज में, उसको, उस थीम को उन्होंने उसको लेकर काफ़ी हद तक लिखा। वैसा ही थॉट मैथ्यू आर्नोल्ड को आज इससे सुनाई पड़ रहा है, हियरिंग इट बाय हिज डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। तो दोनों सेकेंड स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड की सोच और सोफोक्लस की सोच लगभग एक ही जैसी है। दोनों को ही सी वेव्स में ह्यूमन मिजरी और द कॉजेज ऑफ ह्यूमन मिजरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत तरीके से इसको यानी डिस्क्राइब किया जा सकता है। पोएट अपने तीसरे स्टैंजा में चलता है। तीसरा और चौथा दोनों स्टैंजा लगभग एक ही तरह के आइडिया को यानी एक्सप्रेस करता है। द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू। एक्चुअली द पोएट वांट्स टू से हियर इन दिस पर्टिकुलर लाइन दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ईच एंड एवरी पीपल हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सी ऑफ फेथ, जैसे जितना पानी समंदर में भरा हुआ है, तो जैसे समंदर पानी से भरा होता है वैसे ही हमारे मन के अंदर गॉड के प्रति विश्वास वैसे ही भरा हुआ था। एंड राउंड अर्थ शोर, और जिस तरह से यानी पृथ्वी के ज़्यादातर पार्ट्स पर यानी ये वाटर फैला हुआ है, ठीक उसी तरह यानी एक पूरी तरह से यानी गॉड के प्रति विश्वास लोगों के मन मस्तिष्क में भरा हुआ था। पोएट ने यहाँ पर एक तरह से सिमली का यूज़ किया है, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गिर्डल फोल्ड। थर्ड स्टैंजा के थर्ड लाइन में लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गिर्डल फोल्ड। गिर्डल का मतलब होता है एक ऑर्नामेंट जो आमतौर पर कमर में पहना जाता है।
तो जिस तरह से ऑर्नामेंट कमर को पकड़ कर रखता है, ठीक इसी तरीके से गॉड के प्रति विश्वास भी इंसान के दिलो दिमाग में पूरी तरह से यानी रसा था, बसा था। बट नाउ आई ओनली हियर। तो एक समय था कि इतना डीपली रूटेड ये फेथ था। बट नाउ आई ओनली, पोएट अपने चौथे लाइन में कहता है बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब मुझे सुनाई पड़ रहा है सिर्फ मिलोंकोली। मिलोंकोली मतलब सैड सॉन्ग, लॉन्ग एंड ड्राइंग रिवर, यानी एक शोक भरी एक वेव्स का वापस जाने की सॉन्ग। तो वेव का वापस जाना, यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि वेव के वापस जाने को इन्होंने कंपेयर कर दिया है, ये मेटाफर है, और कंपेयर कर दिया है डिक्लाइन ऑफ फेथ इन गॉड। तो विथड्रॉइंग रोअर रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड। तो रात में जैसे जैसे विंड चलती है, जैसे जैसे वेव्स आता है वापस जाता है, तो वेव का वापस जाना यानी गॉड के प्रति विश्वास का खत्म होना डिस्क्राइब किया गया है। और इस तरह से जैसे ही वेव वापस चला जाता है तो पत्थर का टुकड़ा जो बहाकर लाया है वेव अपने साथ, वो पत्थर का टुकड़ा तो उसी बीच पर ही छूट जाता है। तो वैसे ही इंसान का जो गॉड में विश्वास था वो तो वापस चला जा रहा है। तो अब बच क्या जा रहा है उसकी ज़िंदगी में? कंकर पत्थर। कंकर पत्थर मतलब परेशानी, दुख, तकलीफ़, इस तरह की परेशानियों से वो इसीलिए घिरा हुआ है क्योंकि उसका विश्वास गॉड के प्रति कम होता जा रहा है। तो इस तरह की दुनिया में जब हम लोग रहते हैं तो अब पोएट अपने चौथे और आखिरी स्टेंजा में चलता है। तो नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ स्टेंजा, एंड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्थ स्टेंजा द पोएट सेज लव। is also a kind of expression for the sadness. The poet is sad, and here love is referred to beloved. Here he says let us be true to one another. ऐसी दुनिया में जहाँ पर लोगों का विश्वास गॉड से उठता चला जा रहा है, जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, लोग एक दूसरे के प्रति यानी न विश्वास है न भरोसा, ऐसी दुनिया में कम से कम हम दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास बरकरार रखें। लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहें, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, क्योंकि पोएट अपने सेकेंड लाइन में कहता है फॉर द वर्ल्ड व्हिच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि जो दुनिया हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, ये एक तरह से सपनों की दुनिया है, जहाँ पर वैरायटी तो बहुत है, जहाँ पर सुंदरता तो दिखाई देती है, नयापन भी दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा लगता है ऊपर से देखने में दुनिया, लेकिन अंदर से इस दुनिया में कहता है पोएट हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। मतलब इस दुनिया में रियलिटी में न तो कोई खुशी है, न कोई प्यार, न तो किसी तरह की कोई उम्मीद, न कोई सर्टेनिटी, न कोई शांति, और न ही विपत्ति में कोई मदद करने वाला। इस दुनिया में इस तरह का वास्तविकता यही है। तो ये दुनिया कैसी हुई? पोएट अपने पोएम के आखिरी 3 लाइन को एक तरह से दूसरे चीज़ से भी कंपेयर कर दिया है और कहता है तो फिर इंसान इस दुनिया में परेशान क्यों है? इंसान एक्चुअली अपने ही अंदर लड़ रहा है। जैसे 2 देश की सेनाएं अपने आमने सामने होती है और लड़ती है, दोनों सेनाएं एक दूसरे को जानती नहीं लेकिन एक दूसरे को मारती है। क्यों लड़ रही है सेनाएं? कि इसका सोल्जर से क्या दुश्मनी है, दोनों में से कोई नहीं जानता। ये नहीं जानता उसके मरने और मारने का कारण, लेकिन लड़ रहा है। तो हमारे अंदर भी इसी तरह की एक लड़ाई चल रही है। सो पोएट हियर सेज इन द नेक्स्ट लाइन ऑन ए डार्कलिंग प्लेन। ये दुनिया एक डार्कलिंग प्लेन है, मतलब एक तरह से अंधेरी युद्ध भूमि है, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, जहाँ से बहुत सारे थ्रेड्स हैं, और इसी थ्रेड्स और स्ट्रगल के बीच में इंसान को जीना होता है। ये हमारे अंदर एक 2 इग्नोरेंट आर्मीज़ की तरह, जैसे 2 इग्नोरेंट आर्मी आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी इसी तरह की यानी जो एक स्ट्रगल है, एक फाइट है हमारे दिल के अंदर, वो हर समय चलती रहती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि तीनों ही स्टेंजा में वेव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, पेबल्स को दिया गया है, और पूरे पोएम के द्वारा पोएट इसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि डिस्पेयर, हेल्पलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर, हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड इज़ ओनली ड्यू टू द
डिक्लाइन ऑफ फेथ इन आवर रिलीजन, डिक्लाइन इन फेथ इन गॉड। सो इस तरह से पोएट हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने गॉड में बिलीव करना चाहिए और गॉड के प्रति हमारा विश्वास हर समय बना रहना चाहिए। थैंक यू।